Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 4th. So in class 4th we were studying chapter number 12, beaks and claws. So here's the part 3 of this interesting chapter. Let's start the part 3. So we have already learnt about some different kind of birds and their beaks, and today we are going to learn about different kind of claws. So here you can see these are the claws for swimming. So just look at the picture and pay attention to the picture. So these types of claws where there is a membrane in between help in swimming as of ducks. So these are the claws for swimming. So here you can see this kind of membrane between the claws, and this membrane actually helps in swimming. So these kind of claws are found in birds which actually swim, like example is duck. तो बच्चों ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्लॉज की बात कर रहे हैं, यानी पंजों की बात कर रहे हैं। तो अब ये हम पहले प्रकार के पंजे देख रहे हैं जो कि तैरने वाले पक्षियों के होते हैं। तो ये पंजे तैरने वाले पंजे कहलाते हैं। आप देख सकते हो कि ऐसे पंजों में क्या खास होता है। तो ये बीच में झिल्ली आपको नजर आ रही है। पंजे पे आप देखोगे कि बीच में झिल्ली होती है और इस झिल्ली की सहायता से ही पक्षी को तैरने में मदद मिलती है। सो दीज आर द क्लॉज फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट वन आर द क्लॉज to hold the branch. You can look at these claws, and these claws are helpful in holding the branch. Now these types of claws which have 3 fingers spread in front and 1 finger at the back help in sitting on the branches like those of sparrows. So you can see these claws, that these here 3 fingers are in front and the 1 finger, this one, is in the back. So these kind of structure actually help the bird to sit at a particular branch or to hold on to the particular branch. तो बच्चों ये दूसरी प्रकार के पंजे आप देख रहे हैं। ये पंजे जो हैं किसी पेड़ की शाखा को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं। आप देखोगे कि इन पंजों में जो 3 हिस्से हैं, 3 उंगलियां आप कहें, वो आगे की तरफ है, लेकिन एक उंगली जो है वो कहाँ है? पीछे की तरफ है। और इस कारण से ये जो संरचना है पंजों की, ये पक्षी को बैठने में, किसी चीज को या ब्रांच को वहां बैठने के लिए, पकड़ने के लिए सहायता करते हैं। और इस कारण से ये पंजे जो हैं लगभग उन पक्षियों में पाए जाते हैं जो अक्सर पेड़ों पर बैठते हैं और शाखाओं को पकड़ते हैं, जैसे कि चिड़िया में इस प्रकार के पंजों को आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द claws for walking on the ground. There are some claws which are helpful to the bird in walking to the ground. Now these types of claws spread out towards the front of the feet and they help in walking on smooth soft surfaces like those of heron. So you can see that these particular kind of claws are actually spread towards the front of the feet. So you can see here in this picture that the claws are spread in front of the feet and they help the bird in walking on the ground, and these claws are actually found in heron. तो बच्चों यहाँ जो पंजे आप देख रहे हैं, ये तीसरे प्रकार के पंजे जो हैं वो जमीन पर चलने में सहायता करते हैं। और ये पंजे जो हैं किस में पाए जाते हैं? तो ये बगलों में पाए जाते हैं, जिसको हेरॉन कहते हैं। और वास्तव में इसमें आप क्या देखेंगे कि इस पंजे में क्या होता है कि ये आगे की ओर फैला हुआ नजर आता है और इस कारण से पक्षी को मैदान में चलने में सहायता करता है। Now next type of claws are claws to catch prey. You can see these type of claws, that these are useful to catch prey. A strong claw of this kind, which is slightly bent and with sharp nails, helps in catching of prey like that of hawk. You can find these kind of claws in hawk. तो बच्चों ये पंजा जब आप देख रहे हैं तो यहाँ ये संरचना आपको नजर आ रही है कि ये संरचना जो है
क्यों आवश्यक है या क्या मदद करती है पक्षी की? तो किसी शिकार को पकड़ने के लिए तो ऐसे पंजे जो हैं जिसमें कि थोड़ा सा मुड़े हुए से आप देख रहे हैं कि पंजे होते हैं और इनके नेल्स जो है काफ़ी तीखे होते हैं, जो नाखून है वो काफ़ी तीखे होते हैं और इस प्रकार के पंजे और नाखून जो हैं वो शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो ऐसे पंजे कहाँ मिलते हैं, कौन से पक्षियों में मिलते हैं? तो बाज इसका उदाहरण है, हॉक जिसे हम कहते हैं। और बाज आपको पता है एक ऐसा पक्षी है जो बहुत अच्छे से अपने शिकार को पकड़ लेता है और बाज में आपको ऐसे पंजे देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज आर क्लॉज टू क्लाइंब इरेक्ट सरफेसेस। तो ऐसे क्लॉज जो कि किसी सीधी या खड़ी सतह पर चलने में सहायता करते हैं। These types of claw with 2 fingers spread at front and 2 at back। इनमें 2 फिंगर्स तो आगे की तरफ होती हैं जबकि 2 फिंगर्स जो हैं वो पीछे की तरफ होती हैं। and help the bird to climb the trees and erect surfaces like that of woodpecker। so ये जो पंजे होते हैं ये कैसे मदद करते हैं? तो ये किसी खड़ी सतह पर, जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं या कोई अन्य सीधी खड़ी सतह हो उस पर चलने में ऐसे पंजे सहायता करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ क्लॉज आर एक्चुअली फाउंड इन वुडपैकर। तो वुडपैकर या कठफोड़वा जो होता है उस पक्षी में ये पंजे आपको देखने को मिलते हैं। कठफोड़वा या वुडपैकर ऐसा पक्षी होता है जो किसी भी पेड़ पे जो चढ़ते हुए और उसकी वुड को अपनी बीक से, अपनी चोंच से फोड़ते हुए चलता है। तो बच्चों ये हुए हमारे क्लॉज। सो दीज वर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज वी वर लर्निंग इन दिस चैप्टर एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर विद आवर नेक्स्ट पार्ट। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।